So dear students, in this video I will discuss question number 1 of exercise 4.4 based on graph of linear equation which is parallel to x-axis or y-axis. So see the first question. Here you have to give geometric representation of equation y equal to 3 as an equation in one variable and in two variable. See first part, in one variable. So in one variable only one axis is there, that is only one line you have to draw, simply just as a number line. So number 1, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 like this. And then you see y equal to 3. So y equal to 3 means this point, indicate this as a point P. So point P represents y equal to 3 in one variable. So point P, this single point is represented by this equation in one variable. Let me summarize this in Hindi. इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है y equal to 3, इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, फिर टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन चाहिए, एक एक्सिस चाहिए. जैसे नंबर लाइन ले लिया आपने, तो कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो सकता था. इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप वाई एक्सिस ही ले, एक लाइन ले सकते हैं कोई भी. इसको नंबर लाइन के फॉर्म में नंबर शो कर दीजिए 0, 1, 2, 3, और जहाँ पर 3 आपको आ रहा है उस पॉइंट, वहाँ पर एक पॉइंट इंडिकेट करिए. ये पॉइंट P रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू 3 को वन वेरिएबल. तो ये आपका हो गया वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन. अब इसके बाद आते हैं टू वेरिएबल में कैसे इसको शो करना है. So y equal to 3 to be represented in two variables. Y equal to 3 in two variables. Two variables means you will write this as 0x plus 1y equal to 3. The variable which is not present, you can write as 0x is 1y equal to 3. And here x can be given any value. You can have table of values just as you draw any linear equation x, y. So you can have 3 points. So y will always remain 3. No calculation required here. Y is always 3. X you can give any value like 0, 1, 2. X can be given any value. All these points you can clearly check will satisfy this, because x is always 0, y is always 3. Now you have to plot all these points on the graph paper. X O x dash x axis, y O y dash y axis. You can name these points as A 0, 3, B 1, 3, C 2, 3. First point 0, 3, x coordinate 0, y coordinate 3. So this will be 1, 2, 3. This point is A. Similarly 1, 3, x coordinate 1, y coordinate 3, 1, 2, 3. This point is B. Next is C 2, 3, x coordinate 2, y 3, 1, 2, 3. So C point is here. All the points will be in the straight line, and if you join them, what you will get? You will get a line parallel to x axis. This line is parallel to x axis. Therefore y equal to 3 represents line AB, because they only both have, which is parallel to x axis. In two dimension, same equation represents a line parallel to x axis. Let me summarize this in Hindi. तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल में आपको शो करना है. तो पहले इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख दीजिए. जो वेरिएबल नहीं है उसको आप लिख दीजिए 0x. अगर x नहीं होता है यहाँ तो y होता है यहाँ. जैसे यहाँ पर अगर y दिया हुआ है तो 0x plus 1y इक्वल टू 3. अब यहाँ पर आप टेबल ऑफ वैल्यूज बना लेंगे. यहाँ y हमेशा 3 ही रखना है आपको, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. x की जगह कुछ भी रख सकते हैं. अब इसे पॉइंट बन गए 0, 3, 1, 3, 2, 3, और एक ग्राफ पे इनको प्लॉट कर देना है आपको. ये सारे पॉइंट से प्लॉट करेंगे आप तो आपको
ये सारे पॉइंट एक लाइन में मिलेंगे और ये लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो एक ही इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया गया तो ये एक लाइन मिला आपको जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यही इक्वेशन अगर आप वन वेरिएबल में देखा गया तो ये क्या हुआ, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपने देखा दोनों पार्ट में। तो इस तरह से देखने का मेथड आपका क्या है, उसके ऊपर वन वेरिएबल में ये इक्वेशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और टू वेरिएबल में ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और मेरे लिए क्यों हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, किसी आपने लिख दिया टेबल पे 6 लिखा आपने कहीं पे, तो 6 को जब आप देखेंगे तो आपको 6 लगेगा, जो सामने टेबल पे बैठा होगा उसको वो 9 लगेगा। तो इस तरह से देखने के तरीके अगर आपको चेंज कर देंगे, एंगल बदल देंगे तो वह चीज़ अलग हो जाएगी। जैसे 6 को आपने लिखा, उधर से कोई देखेगा तो 9 लगेगा उसको। तो वही उसी से मिलती जुलती सिचुएशन है यहाँ पे कि सेम इक्वेशन है y=3। अगर आप वन वेरिएबल में देखते हैं तो ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टू वेरिएबल में देखते हैं तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।